Hello everyone. I welcome you all to EduTap and I welcome you all to the 5 MCQ series on finance. Today we'll be discussing the 5 MCQs on time value of money. Now, before beginning the session, we at EduTap have brought a comprehensive guidebook on SEBI Grade A and RBI Grade B. You as an aspirant spend a lot of time on finding the right patterns, syllabus, the cutoffs which prevailed in the previous year. And not just that, the role of RBI in the economy, the hierarchy once you get into the organization, and the perks which you enjoy. This consumes a lot of time and it is quite cumbersome at times to find the relevant information. But we make this process simple for you by providing you just a 30 pages of comprehensive guidebook which will provide you all the detailed answers and save a lot of time. And let me tell you that this guidebook is absolutely free and you can download the same from the description given below. Now, if you are new to our YouTube channel, I would request you to press the bell icon to get the latest updates of various regulatory body examinations. And do join our Telegram channel to get the PDFs of the session. And if you have any doubts regarding the concepts, you can contact us on the given phone number. Now, let's begin today's session. Today, we'll be discussing MCQs of time value of money. The first question says that which of the following is or are the main reasons of time value of money? Is it inflation, risk and uncertainty, investment opportunity, consumption, or all of the above? The right answer to the question is option E, all of the above. So let us understand first what is time value of money. See, time value of money is a very simple concept which says that the sum of money you receive today, the sum of money you receive today is worth more, ठीक है? Is worth more than the same sum of money if you receive it after 1 year or in future. समझ रहे हो? अगर आपके पास ₹100 है, ठीक है, ये है at t equal to 0 which is today. This ₹100 is not same as, I'll cross it many times because you have to remember this fact, that this ₹100 is not same as ₹100 which you would receive after year 2 or let's say year 1. क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप अगर देखो तो आप कहोगे कि यार ₹100 का जो नोट है वो तो वैसे ही रहा. नहीं. See, might be in physical form the money looks the same, but actually the purchasing power of the money, which or in other terms the buying capacity of the money changes, or in future date the buying capacity of money reduces. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस इशू को सॉल्व करती है और ये इक्वेट करती है कैश फ्लोज जो अलग अलग टाइम पीरियड में टेक प्लेस हो रहे हैं. तो सबसे पहले वील अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहले याद रखना व्हेन आई से अबाउट समथिंग अबाउट फ्यूचर, the future is uncertain. ठीक है? We cannot say what would happen in future. But looking at the past data, we can say that eventually there is a price rise होती है. धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो मान लो अगर आज आप ₹1000 से 10 kg सामान खरीद सकते हो, तो इन्फ्लेशन के वजह से लेट्स से यही 10 kg एक साल बाद आपको मिलती है ₹1250 में. तो क्या अब अगर एक साल बाद आप इस 1000 के नोट को ले जाओगे तो आपको 10 kg सामान मिलेगा? नहीं. आपको कितना सामान मिलेगा? 8 kg. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मनी की बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई. वो क्या है? इन्फ्लेशन के वजह से पैसे का भाव कम हो गया. आप सामान ज़्यादा पैसा ले जाना पड़ रहा है आपको वही सेम अमाउंट ऑफ सामान खरीदने के लिए. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बताती है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट उस पर क्या होगा. सो ये ऑप्शन सही है. नाउ व्हेन आई से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, वेन एवर आई टॉक अबाउट फ्यूचर, द फ्यूचर इज अनसर्टेन. मतलब वी एज एन इन्वेस्टर डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड रिस्क का बहुत सिंपल सा मतलब है कि व्हेन आई lend the money to someone or I borrow the money to someone,
Let's say you take an example of a person who is a lender. ठीक है, he lends you rupees 10,000. तो क्या कोई गारंटी है कि 1 साल बाद आप उसका पैसा सही से दे दोगे? नहीं. सो ये एक और ऑप्शन है जो टाइम वैल्यू के इम्पोर्टेंस को बताता है. द थर्ड ऑप्शन सेज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर आपको कहा जाए कि यार हम आपको 100 रुपीज़ आज देंगे और आप पैसे को आज ही इन्वेस्ट कर लो, या आपको ये ऑप्शन देते हैं कि हम आपको 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर देंगे. तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आज आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू विल have a chance of earning more. The investment opportunity and the return opportunity increases when you invest the money immediately. So this is also a cause of time value of money. The last option says consumption. You know, we as human beings always want to consume things immediately. तो अगर आज मेरे हाथ में पैसा है, if I have the money right now, I'll be able to consume it immediately. So all these factors are important and are the main reasons for time value of money. Now let's move ahead. It says that time value of money is nothing but the concept that a sum of money is worth more today than the same money which is worth on a future date. समझ रहे हो कि पैसे का भाव आज ज़्यादा है and the same money would be worth less on a future date. Let's move ahead. The question says that a certain amount of money doubles in 20 years. ठीक है. It will take how many years to become 4 times? See, these types of questions are very common in our everyday lives. See, when you as an investor invest money today and you know that the money will become 2 times in 20 years. Now, we use a rule called Rule of 72 to say how many years would the money take to become double. एंड इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 20 साल लगता है मनी को डबल होने में. एंड द क्वेश्चन आस्क्स कि कितना साल लगेगा द मनी टू बिकम 4 टाइम्स. तो सबसे पहले तो लेट अस सी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 40 ईयर्स. नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पैसा 20 साल में डबल हो रहा है. एंड व्हाट रूल विल बी यूजिंग? रूल ऑफ 72. तो रूल ऑफ 72 कैसे सॉल्व होती है? द ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द अमाउंट which would be equal to, simply we'll do 72 divided by the rate of interest. तो इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? नहीं दिया. सो फर्स्ट वील फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. we'll simply equate this equation, that is 20 years to double the money would be equal to 72 divided by x, and this x turns out to be 3.6%. तो मतलब अगर 3.6% के रेट से आप अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करो तो एट द एंड ऑफ 20 years योर मनी वुड बिकम डबल. एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क्स कि कितने साल में पैसा 4 times होगा, विच मीन्स क्वाड्रैपल. सो फॉर दैट केस वी यूज अ रूल कॉल्ड रूल 144, wherein we'll simply use years required for the money to become 4 times would be equal to 144 divided by the rate of interest. ठीक है. तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकाला? 3.6. तो 144 को डिवाइड करो 3.6 से, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 40 years. सो इट इज़ वेरी सिंपल. लाइकवाइज अगर आपसे ये पूछता है कि अगर एक पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हो एंड हाउ मेनी ईयर्स वुड इट टेक टू गेट ट्रिपल, then we simply use the rule of 114, that is 114, sorry, जिसमें you will again solve the number of years for your money to get tripled would become 114 divided by the rate of interest. ठीक है. तो इससे एक इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि अगर मेरे को पैसा डबल करना है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट में तो मेरे को कितने साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, या पैसे को ट्रिपल करना है या क्वाड्रैपल करना है तो हाउ मेनी ईयर्स वुड आई हैव टू इन्वेस्ट द मनी. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. लेट्स मूव अहेड. The question says that consider the example of a gold mine where you have the rights to mine for the next 20 years, over which period you plan to extract 5,000 ounces of gold every year.
The price per own is $300 currently but is expected to increase 3% पर ईयर. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक गोल्ड माइन को आप 20 साल के लिए यूज कर रहे हो, जिसमें से यू आर एक्सट्रैक्टिंग 5,000 ounce every year and the price for extracting the same is $300 currently, but the price increases हर साल 3% से ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. ठीक है, द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दिया है 10%. व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? इंटरेस्ट रेट हो गया, जिसको जो डिस्काउंट रेट कब कहते हैं इसको, जब हम लोग उस इंटरेस्ट रेट को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं तब वो डिस्काउंट रेट हो जाता है. Then the question says then the present value of gold that would be extracted from this mine can be computing using which concept? तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? Present value of money is nothing but the value of the money of future cash flows when they are discounted to the current date. मतलब जैसे ये केस में ये टाइमलाइन ले लो, ये 1 साल से स्टार्ट होके 20 साल पे ख़त्म हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू है का कुछ मतलब नहीं है. प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा कि हर साल जो कैश फ्लोज हो रही हैं उसका t=0 पे जो वैल्यू होगा वो होता है प्रेजेंट वैल्यू. और उसको कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट रेट यूज करके, डिस्काउंट रेट को यूज करके. और इस केस में डिस्काउंट रेट कितना दिया है? 10%. ठीक है, और इसमें कहता है कि हर साल यू spend $300 but the cost increases by 3% every year. मतलब ईयर 1 में अगर आपको $300 लगा तो ईयर 2 में ये $300 3% से इंक्रीज कर जाएगा और हर साल 20 साल तक ये 3% से ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा. तो विच कॉन्सेप्ट वुड यू यूज टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो? Is it annuity due? Is it growing annuity? Is it perpetuity? Is it growing perpetuity or none of the above? The correct answer to this question is growing annuity. Now let us understand all these concepts. Now what is annuity in general? सबसे पहले समझेंगे. Annuity is nothing but when a constant amount of cash flow, मतलब एक fixed amount of cash flow टेक प्लेस करता है फॉर अ गिवन टाइम. ठीक है, मतलब अगर लेट्स से ये 2 साल का टाइम लाइन ले लो, ठीक है, और t=0, तो आप ईयर 1 में 200 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो. अगेन एट ईयर 2 यू डिपॉजिट ₹200. सो दिस इक्वल कैश फ्लोज फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. फिक्स्ड इंटरवल 2 साल के लिए. उस प्रोसेस को जब हम पैसे फिक्स्ड इंटरवल टाइम में फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस चीज़ को एन्युटी कहते हैं. ऑन द सेम टर्म्स ग्रोइंग एन्युटी क्या हो गया? जब ये फिक्स्ड अमाउंट दिस 200 रुपीज़ ग्रोज विथ अ सर्टेन परसेंटेज जो कॉन्स्टेंटली हर साल ग्रो कर रहा है. अपने केस में क्या हो रहा था? 3% पे ग्रो कर रहा है. तो क्या हो गया कि एक फिक्स्ड अमाउंट है वो कांस्टेंट अमाउंट से ग्रो कर रहा है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो दोज टाइप ऑफ कैश फ्लोज आर नोन एज ग्रोइंग एन्युटी. समझ आ रहा है क्यों अपने केस में ग्रोइंग एन्युटी यूज करेंगे? नाउ कीप इन माइंड दैट ग्रोइंग एन्युटी को एट टाइम्स इंक्रीजिंग एन्युटी भी कहते हैं. क्यों इंक्रीजिंग? कि कांस्टेंट रेट से वो जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डिनरी एन्युटी. व्हाट इज ऑर्डिनरी एन्युटी? लेट्स से कि अगर आपका पेमेंट प्रोसेस ऐसा है कि दैट यू नीड टू मेक पेमेंट्स और यू रिसीव पेमेंट्स एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवल. लेट्स से कंसिडर दिस टाइमलाइन ईयर 1 से ईयर 10. ठीक है, लेट्स से आपको हर साल ₹500 मिलेगी बट एट द एंड ऑफ ईयर 1, likewise at the end of year 2. And इस तरीके से when you receive cash flows at the end of the time period, that becomes an ordinary annuity. Now opposite to ordinary annuity, what is an annuity due? Annuity due कुछ नहीं है, आपको same process होगा payment का, but instead of receiving the payment at the end of the investment period, you receive these payments at the beginning of the time period. ठीक है,
मतलब जैसे ही 1 साल हुआ, जैसे ही t=0 से t=1 पहुंचे आपको 500 रुपीज मिल जाएगी ईयर 1 के कंप्लीट होने पे नहीं. व्हाट इज एन्युटी ड्यू? कुछ नहीं. व्हेन द कैश फ्लोज या द पेमेंट occur एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या हो रहा था? द पेमेंट वाज occurring एट द एंड ऑफ द पीरियड. इन एन्युटी ड्यू में द पेमेंट इज occurring एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. ठीक है. परपिचुइटी क्या होती है? परपिचुइटी इज नथिंग व्हेन यू गेट अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज थ्रू आउट योर लाइफ. एनविटी में क्या था? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तक आपको 200 रुपया लगाना था इस एग्जाम्पल में, 2 साल. लेकिन अगर आप इसको परपिचुइटी के कॉन्सेप्ट से देखो तो आपको ये 200 रुपये लाइफ लॉन्ग लगाते रहना है, या ये 200 रुपया आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेगा. तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं परपिचुइटी. ठीक है. नाउ व्हाट इज ग्रोइंग परपिचुइटी? नाउ ग्रोइंग परपिचुइटी में दो चीज है. फर्स्ट, that you would be receiving a payment which will continue throughout your lifespan, and second, the payment is not fixed, it keeps on growing. ठीक है. Now can you tell me an example of a perpetual payment? A good example will be the bonds issued by UK, which is console. ये एक परपिचुअल बॉन्ड है जो दो केसेस में ये कंसोल में क्या होता है? आपको तब तक पेमेंट मिलते रहेगा टिल द यूके गवर्नमेंट डजंट टेक बैक द बॉन्ड्स. ठीक है, समझ आ रहा है? तो द पेमेंट मेड इज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. एंड ग्रोइंग परपिचुइटी क्या है? कि इसमें जो पेमेंट्स है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, the question says dash compounding results in the maximum possible future value of the at the end of period and for a given rate of interest. कहता है कि अगर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फिक्स्ड है तो कितने बार कंपाउंडिंग करोगे कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वुड बी मैक्सिमम. ठीक है. सबसे पहले व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? द वैल्यू ऑफ मनी विच यू इन्वेस्टेड टुडे, the worth या the value which would you receive at the end of certain period of time in future is known as future value. मतलब जैसे आज ₹100 डिपॉजिट किया, 10 साल बाद इस ₹100 का वैल्यू वुड बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100. सो द गिवन क्वेश्चन आस्क्स दैट व्हाट इज द इफेक्ट of compounding period on the future value. So always remember, more the frequency of compounding, more will be the future value. तो अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयर हो रही है इसका मतलब साल में कंपाउंडिंग कितने बार हो रहा है? 2 बार. कंपाउंडिंग मंथ में हो रही है तो साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रही है? 12 टाइम्स. कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मतलब तो हर सेकेंड कंपाउंडिंग हो रही है. और अगला ईयरली कंपाउंडिंग मतलब साल में एक बार कंपाउंडिंग होगी. तो किस केस में वैल्यू ज़्यादा होगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में सबसे ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू मिलेगी. क्यों? कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू पे तो यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट, बट आपको इंटरेस्ट पे भी यू विल गेट इंटरेस्ट. तो जब आपको ब्याज पे ब्याज मिल रहा है और ये कंटिन्यूस वे में कंपाउंड होगी तब इस चीज़ का वैल्यू बढ़ेगा. एंड दैट इज़ वाई आई से मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मोर विल बी द फ्यूचर वैल्यू. ठीक है. Let's moving to question number 5. Now, if the repayment of loan is to start after a gap of few years, ठीक है, लोन रिपेमेंट करते हो और एक गैप के बाद वो रिपेमेंट स्टार्ट होती है, इट इज कॉल्ड अ डैश लोन. इज इट डिफर्ड लोन? इज इट नोन एज एन्युटी ड्यू, amortized loan, bridge loan, or none of the above? The correct answer to this question is of option A, which is deferred loan. Now, what is a deferred loan? Deferred loan is nothing when you delay your interest payments for certain years. मतलब अगर आप एक लोन ले रहे हो तो उस लोन की पेमेंट की स्टार्टिंग आप कुछ दिन बाद से करोगे, लेट्स से आफ्टर 2 years. But always keep in mind, if you don't start the payments after the certain period of time, the loan can start charging you interest rates for the payments which you did not make. ठीक है. Now what is an annuity due? As I said you, when the payments begin at the beginning of the period.
बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड में होगी तो वो हो जाएगी एन्युटी ड्यू। ऐसा तो नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। ये लोन पेमेंट तो लोन पेमेंट के केस में नहीं हो रहा। Now, what is an amortized loan? See, amortized loan is nothing but a loan payment schedule. ऐसे याद रखो कि एक लोन पेमेंट स्केड्यूल है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले द पेमेंट्स व्हेन यू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर क्लियर्ड फर्स्ट एंड इवेंचुअली द प्रिंसिपल इज रिमेनिंग एट द लास्ट। तो ऐसे पेमेंट्स जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी आप लोन अमाउंट पे कर रहे हो उसका कुछ पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा और धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होगी, रिड्यूस होते जाएगी, और लास्ट में क्या बच जाएगा, आपका प्रिंसिपल। और जो लास्ट पेमेंट करोगे वो ऐसा होगा कि द प्रिंसिपल अमाउंट वुड बिकम इक्वल टू जीरो एंड द लोन क्लोजेस। उस प्रोसेस को लोन अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल ले लो बैंक लोन्स में या ईएमआईज के पेमेंट में। नाउ व्हाट इज ब्रिज फिनेंसिंग? देखो, जब कंपनी रिक्वायर्स टू फिनांस इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स टिल इट मैनेजेस टू एक्वायर अ फंड विच कैन हेल्प टू meet its long term requirements, those kind of financing are known as bridge financing. मतलब it helps the company to be solvent for a shorter period of time, जब तक कंपनी doesn't get a proper source of long term funding। ठीक है, this is what is known as bridge financing. Now in this case question क्या था कि loan payment certain year of time के बाद हो रही है, तो those type of loan payments are known as deferred loan payments. I hope you enjoyed this session, but before closing the session I have a very interesting homework question for you. Do let me know the answers in the comment section and I'll let you know the right answer in the next session in people who answered it right. Thank you. If you have any doubt, do contact us on this given number and join our Telegram channel to receive the PDFs of the session.